गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय क्लास ऑफ मैथमेटिक्स माय मैथ्स माय मेथड्स। हम कर रहे हैं क्लास 12 में टॉपिक प्रोबेबिलिटी, जिसमें से हम बेस थ्योरम ऑफ लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी कर रहे थे। उसमें हमारे पास एक्सरसाइज 13.3 कंटिन्यू थी। लास्ट क्वेश्चन टाइम की कमी की वजह से पेंडिंग था, अभी उसको कंप्लीट करते हैं। एक्सरसाइज 13.3 क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन है हमारे पास, इफ A is subset of B and probability of B is not equals to 0। क्वेश्चन नंबर 14 13.3 में 14 क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास। A is subset of B given है and probability of B is not equals to 0 ये given है। then we have to check which of the four option is correct। चार ऑप्शन दे रखे हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। फर्स्ट ऑप्शन इज probability of A upon B equals to probability of B upon probability of A। Option B is probability of B upon A is less than probability of A, and option C is probability of A upon B is greater than equals to probability of A, and D option is none of these। Let us check। Left hand side लेते हैं इसमें probability of A upon B। A upon B we know that probability, conditional probability of intersection divided by probability of denominator। So probability of intersection upon probability of B। As it is given that A is subset of B, जब A B का सबसेट है तो इनका इंटरसेक्शन A के इक्वल होगा। जब एक सेट दूसरे सेट का सबसेट होता है तो इंटरसेक्शन हमेशा स्मॉलर सेट के इक्वल आता है और यूनियन हमेशा बिगर सेट के इक्वल आता है। यहाँ A जो है वो सबसेट है B का, तो इंटरसेक्शन हमेशा स्मॉलर सेट के इक्वल होगा, मींस A सेट के इक्वल होगा। So we can write this left hand side as probability of A intersection B can be written as probability of A, क्योंकि इंटरसेक्शन जो है वो A के इक्वल है, divided by probability of B। But right hand side is given that probability of B upon A, यहाँ probability of A upon B आया, so it is not equal। So this situation is not correct, not true, ये false हो जाएगी। First option खत्म। Second option है probability of A upon B is less than probability of A। Again वही चीज हम करते हैं, probability of A upon B solve करने पर यहाँ से निकाला था हमने probability of A upon probability of B के इक्वल हो गया। Now we know that probability of any single event, किसी भी इवेंट की probability हमेशा less than या equal to 1 रहती है। So probability of B is less than equal to 1। Taking reciprocal, so probability of 1 upon B is greater than equals to 1 मिल जाएगा, reciprocal लेंगे तो multiply by probability of A on both sides, so probability of A upon probability of B is greater than probability of B। यहाँ हमने probability of A से multiply किया है both sides। So we have left hand side, ये हमारी left hand side थी, left hand side को simplify किया, left hand side is greater than equal to right hand side, which is not true, क्योंकि क्वेश्चन में इन्होंने लिखा था probability of A upon B less than probability of A आना चाहिए, हमारे पास greater than आ रहा है। This situation is also not correct, so ये option B reject। थर्ड ऑप्शन है हमारे पास probability of A upon B is greater than equal to probability of A आना चाहिए, वो हमने भी सिंपलीफाई किया ही है, यही आया, देखो यहाँ से नहीं सॉल्व किया। So this option is the correct option, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, C option is the correct। तो D भी अपने आप रिजेक्ट हो जाएगा, नन भी नहीं है। So answer is the option C। If A is subset of B and probability of B is not equal to 0, then the conditional probability A upon B will be greater than or equal to probability of A। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 14, लास्ट क्वेश्चन था इस एक्सरसाइज का। अब हम स्टार्ट करते हैं इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज, वो है हमारे पास प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड। प्रोबेबिलिटीज डिफरेंट, एक जो हमारे पास कोई भी इवेंट गिवन है उसके डिफरेंट पार्ट्स हैं और उन सब की प्रोबेबिलिटीज को अलग अलग हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, दैट इज प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज। Exercise 13.4 first question, which of the following is a probability distribution। इनमें से कौन सा probability distribution है, कौन सा नहीं है, हमने ये बताना है properly है या नहीं। So x हमारे पास कोई एक random variable है, that is getting 0, getting 1, getting 2, and px is its probability। 0 आने की probability 0.4, 1 होने की probability 0.2 and 2 होने की probability 0.2। अब हमें बताना है क्या ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है या नहीं। तो आप पहले ही 11th क्लास में ही ये चीज कर चुके हैं कि जो गिवन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है वो वैलिड असाइनमेंट है या नहीं। 11th क्लास में फर्स्ट क्वेश्चन ही था आपके पास, वैलिड असाइनमेंट है या नहीं। वैलिड असाइनमेंट कब होगा, जब सभी प्रोबेबिलिटीज लेस देन 1 हो, 0 और 1 के बीच हो, एंड इट्स सम इज इक्वल्स टू 1।
अब यहां से आप ध्यान से देखें 0 और 1 के बीच तो है, but their sum is not equals to 1. The sum of px is 0.4 plus 0.2 plus 0.2 which is equals to 0.8, not equal to 1. If it is not equals to 1, so this is not a valid probability distribution. ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। सेकंड, इसी तरह सेकंड बताना है हमने, इसमें है या नहीं। हमें पता है प्रोबेबिलिटीज हमेशा 0 से 1 के बीच रहनी चाहिए और उनका सम 1 के इक्वल होना चाहिए। इसमें सम करने की जरूरत नहीं है, क्लियरली दिखाई दे रहा है। Here the probability is negative. Probability cannot be negative. So this is also not a probability distribution. याद रहे, सभी प्रोबेबिलिटीज हमेशा 0 से 1 के बीच लाई करनी चाहिए और उनका सम इक्वल टू 1 होना चाहिए। तो both these are not probability distributions. अब इसके फर्स्ट पार्ट में यहाँ 0.2 की जगह पे मान लो 0.4 है, जो कि बुक में गिवन है 0.4। अगर यहाँ 0.4 है, then the sum is 1. Then the sum is 1. Okay, sum is 1 and all the probabilities are between 0 and 1. सभी probabilities 0 और 1 के बीच है और इनका सम 1 के इक्वल है। Then yes, it is probability distribution. तो ये probability distribution होगा। ओके, तो एक ही चीज क्लियर होनी चाहिए बस, सभी probabilities 0 से 1 के बीच रहनी चाहिए और इनका सम 1 के इक्वल होना चाहिए। यहाँ 0.2 होता तो इसका सम 1 नहीं होता, 0.8 बनता, तो उसके लिए नहीं नोट हो जाता। और अगर ये 0.4 है तो इसका सम इक्वल टू 1 आता है। इन दिस केस यस, इट इज प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर द रैंडम वेरिएबल। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है, an arm contains 5 red and 2 black balls. 2 balls are thrown at random. एक आर्म में हमारे पास 5 रेड और 2 ब्लैक बॉल्स है, इसमें से 2 बॉल निकाली जाती हैं रैंडमली। लेट x रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स। x किसको रिप्रेजेंट करता है? नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स को। व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x? तो हमारे पास क्या है? Let x represents random variable that number of black balls, black ball. तब when 2 balls are drawn, two balls are drawn, तो x की वैल्यू क्या हो सकती है? We have to think. X can have values. What values can have? X can have values. अब यही हमने सोचना है। हमारे पास एक बैग में 5 रेड और 2 ब्लैक बॉल है, 2 बॉल निकाली जाती है। x की वैल्यू क्या हो सकती है? x रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ ब्लैक बॉल। कितनी ब्लैक बॉल निकल सकती है? हम एक बॉल निकालेंगे या 2 बॉल निकालेंगे, या एक तो ये केस हो सकता है कि उनमें से एक भी ब्लैक नहीं है ना, यानी कि x की वैल्यू 0 हो सकती है। x कैन हैव वैल्यू 0। x का मतलब है नंबर ऑफ ब्लैक बॉल हो सकता है 0 हो, एक भी ना हो, यानी कि दोनों रेड हो। या फिर हो सकता है 2 में से एक बॉल ब्लैक हो और एक रेड हो, यानी कि x की वैल्यू 1 हो सकती है। या फिर हो सकता है दोनों की दोनों बॉल ब्लैक बॉल हो तो x की वैल्यू 2 हो सकती है। So x can have these values and yes, this is a random variable. ये हो जाएगा हमारे पास। क्वेश्चन नंबर सेकंड में सिर्फ यही पूछा था कि x की वैल्यूज क्या क्या हो सकती है। It can have 0, 1 and 2. Next third question है, let x represent the difference between the number of head and number of tail obtained when a coin is tossed 6 times. Let x represent x किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? डिफरेंस को। x किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? डिफरेंस ऑफ द नंबर ऑफ हेड एंड नंबर ऑफ टेल व्हेन द कॉइन इज टॉस्ड 6 टाइम्स। 6 बार हम कॉइन को टॉस करेंगे तो उसमें x रिप्रेजेंट करता है डिफरेंस ऑफ हेड एंड टेल। अब डिफरेंस क्या हो सकता है? x कैन हैव वैल्यूज, क्या क्या वैल्यूज हो सकती है? सोचने का है। या तो उसमें ये हो सकता है कि एक भी हेड नहीं होगा, सारे के सारे टेल होंगे, यानी कि 0 हेड एंड 6 टेल। 0 एंड 6 ये हो सकता है। तो डिफरेंस कितना बना होगा? 6, डिफरेंस बनेगा 6, ठीक है, डिफरेंस बन सकता है 6। या फिर हो सकता है 1 हेड एंड 5 टेल हो,
6 टोटल टोज है, उसमें से एक हेड और 5 टेल, ये भी हो सकता है। देन व्हाट इज द डिफरेंस? इन दिस केस डिफरेंस इज 4, तो x की वैल्यू 4 हो सकती है। x किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? नंबर ऑफ हेड और नंबर ऑफ टेल का डिफरेंस, है ना। या फिर हो सकता है 2 हेड एंड 4 टेल हो, 2 हेड और 4 टेल हुए, तो डिफरेंस क्या होगा? 2। इन दोनों का डिफरेंस हो सकता है 2। या फिर हो सकता है 3 हेड एंड 3 टेल हो, 3 हेड और 3 टेल होंगे, तो डिफरेंस कितना हुआ? 0। देन डिफरेंस इज 0। या फिर 4 हेड एंड 2 टेल होंगे, डिफरेंस अगेन 2 आ गया, तो 2 तो हमारे पास हो ही चुकी वैल्यू, दोबारा लिखने की कोई जरूरत नहीं। 5 हेड एंड 1 टेल होगा तो 4 डिफरेंस है, 6 हेड एंड 0 टेल होगा तो 6 डिफरेंस है। मींस x कैन हैव दीस वैल्यूज, x की वैल्यूज हमारे पास 0, 2, 4 या 6 ये हो सकती है। ठीक है, थोड़ा सा सोचना है x किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, वही हमने देखना है। x रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ हेड और नंबर ऑफ टेल का डिफरेंस। तो डिफरेंस क्या हो सकता है? या तो डिफरेंस 0 होगा, या तो 2 या 4 या फिर 6। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 है हमारे पास। 4 में 3 पार्ट में सेकंड करा रहा हूं, क्योंकि सेकंड कर लिया तो फर्स्ट बिल्कुल इजी आराम से कर लोगे। क्या है? नंबर ऑफ टेल्स, find the probability distribution number of tails in simultaneous tosses of 3 coins। 3 coins या 1 coin 3 times, एक ही बात है। when 3 coins are tossed, ये लिख सकते हो आप, when 3 coins are tossed। x रिप्रेजेंट करता है रैंडम वेरिएबल को, दैट नंबर ऑफ टेल्स व्हेन 3 कॉइंस आर टॉस्ड, 3 कॉइन को टॉस करें तो उसमें कितने नंबर ऑफ टेल आ सकते हैं। x कैन हैव वैल्यूज, अब सोच के बताइए, x कैन हैव वैल्यूज, x की वैल्यूज क्या हो सकती हैं? 3 कॉइन को टॉस करें, उसमें नंबर ऑफ टेल कितने हो सकते हैं? या तो एक भी टेल ले आएगा, यानी कि सारे हेड होंगे, यानी कि 0 टेल हो सकता है, या फिर 1 टेल और 2 हेड, ऐसे हो सकता है, 1 हो सकता है, या फिर 2 टेल हो सकते हैं, 2 टेल और 1 हेड, या फिर 3 टेल और कोई भी हेड नहीं, ये हो सकता है। तो x की वैल्यू 0, 1, 2 या 3 हो सकती है। नॉर्मल केसेस में, आमतौर पे आपके क्वेश्चंस में x की वैल्यू 0 से लेकर जितनी कॉइन टॉस है या जितनी बार टॉस है वहां तक होती है नॉर्मली, हमेशा नहीं, कई बार चेंज होता है। जैसे पिछले क्वेश्चन में कॉइन को हमने टॉस किया था 6 बार, बट x की वैल्यू 0, 2, 4, 6 आ गई थी। वो डिपेंड करती है रैंडम वेरिएबल पे, क्या है हमारा रैंडम वेरिएबल। बट नॉर्मली आमतौर पे जो क्वेश्चंस मिलते हैं आपको वो ऐसे मिलते हैं जिसमें x की वैल्यू 0 से लेकर नंबर ऑफ टॉसेस तक मिलती है। हमेशा नहीं, बट ज्यादातर ऐसा मिलता है। यहां देखिए x की वैल्यू क्या है? 0, 1, 2 या 3। अब हमें निकालनी है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी निकालनी है व्हेन x इज 0। x इज 0 का मतलब नंबर ऑफ टेल इज 0। जब नंबर ऑफ टेल 0 हो तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? नंबर ऑफ टेल 0 होने का मतलब कोई भी टेल नहीं, मींस ऑल आर हेड। 3 कॉइन टॉस किए थे, तीनों के तीनों हेड हो, इस चीज की प्रोबेबिलिटी क्या है? वी नो दैट हेड होने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 1/2। सेकंड हेड के लिए भी 1/2 और थर्ड हेड के लिए भी 1/2, सो इट इज 1/8। प्रोबेबिलिटी एट x is equals to 1, x is equals to 1 का मतलब when there is one tail, जब एक टेल होगा तो 3 टॉसेस में से एक टेल होगा। 3 टॉसेस में से एक टेल कैसे हो सकता है? टेल हेड हेड ये हो सकता है, या फिर हेड टेल हेड हो सकता है, या फिर हेड हेड एंड टेल ये हो सकता है ना। 3 टॉसेस में से एक टॉस टेल होगा और बाकी हेड होंगे, उसके आउटकम्स ये बन सकते हैं। सो वी कैन फाइंड द प्रोबेबिलिटी। टेल की 1/2, हेड की 1/2, 1/2, सो इट इज 1/8, और रिप्रेजेंट करता है 1/8 को, और प्लस 1/8। या फिर स्टार्टिंग है तो मैं आपको फर्स्ट को कंप्लीट करके जाता हूं। प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल हेड है प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड टेल हेड एंड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड हेड टेल। So it is 1/8 plus 1/8 plus 1/8 means 3/8. Similarly, when x is equals to 2, x is equals to 2 का मतलब जब हमारे पास दो टेल हैं, when we have two tail है इसका मतलब 1 हेड होगा। अब इस चीज के लिए प्रोबेबिलिटी क्या होगी? सो पहले आउटकम लिखते हैं 2 टेल्स, हेड टेल टेल और
टेल हेड टेल और टेल टेल हेड, ये आएगा, है ना। मैं इसकी डायरेक्ट प्लॉट लिख दूं, 1/8 इसकी बनेगी, 1/8 इसके लिए और 1/8 इसके लिए, तीनों के लिए 1/8. So we will get the probability as 3/8 and then the probability at x is equals to 3. x is equals to 3 का मतलब तीनों टेल होंगे, तीनों टेल होने का मतलब टेल टेल एंड टेल 1/8 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 यानी कि इसकी 1/8 हो जाएगी. अब बनाते हैं इसका डिस्ट्रीब्यूशन. डिस्ट्रीब्यूशन में क्या हो जाएगा हमारे पास, एक तरफ x एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ x. डिस्ट्रीब्यूशन इज we will have x and the probability of x. This is x and then the probability of x. x की वैल्यू क्या क्या है, 0 1 2 3, 0 1 2 and 3. What is the probability at 0? 0 पे probability है 1/8, 1 पे probability कितनी है हमारी 3/8, 2 के लिए probability है वो भी 3/8 and 3 के लिए probability कितनी है 1/8. So this is the probability distribution. ये probability distribution बनके रेडी है. यही करना है बस, probability distribution फाइंड करना है क्या होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ है, क्वेश्चन है x रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ सक्सेस को. नंबर ऑफ सक्सेस किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, इसमें लिखा है नंबर ग्रेटर देन 4. x भी रैंडम वेरिएबल दैट इज सक्सेस का मतलब है नंबर ग्रेटर देन 4 व्हेन 2 डाइस आर टॉस्ड, मतलब 2 डाइस थ्रो की जाती है तो x की वैल्यू क्या हो सकती है. देखिए x कैन हैव वैल्यूज, x की वैल्यू क्या हो सकती है, 2 डाइस थ्रो की गई है, या तो एक में भी ग्रेटर देन 4 नंबर नहीं होगा, वैल्यू 0 हो सकती है, या एक डाइस में नंबर ग्रेटर देन 4 होगा, या फिर दोनों डाइस में नंबर ग्रेटर देन 4 होगा, यही हो सकता है. अब इसके हम लिखते हैं प्रोबेबिलिटीज क्या क्या हो सकती है. आउटकम लिख लो पहले, फिर इसकी प्रोबेबिलिटीज बन जाएगी. प्रोबेबिलिटी एट x इज इक्वल टू 0. x इज इक्वल टू 0 का मतलब एक भी डाइस के ऊपर 4 से ग्रेटर नंबर नहीं होगा, यानी कि दोनों डाइस के नंबर लेस देन 4 होगा. मींस वी हैव टू फाइंड द, पहले आउटकम लिख लें, बेटर यही होगा. तो पहले इनके आउटकम हमने लिख लिए. x इक्वल टू 0 का मतलब एक भी नंबर ग्रेटर देन 4 नहीं होगा. तो 1 1 1 2 1 3 1 4, अगला 1 5 नहीं आएगा क्योंकि 1 5 ग्रेटर देन 4 होता है. हमें वो नंबर लेने हैं जो ग्रेटर देन 4 ना हो. 1 1 से 1 4, इसी तरह 2 1 से 2 4 तक, 3 1 से 3 4 तक, 4 1 से 4 4 तक. ठीक है, ये आउटकम है. x इक्वल टू 1 का मतलब जिसमें सिंगल डाइस के ऊपर, एक डाइस के ऊपर ग्रेटर देन 4 हो. 5 1 5 2 5 3 5 4, 6 1 6 2 6 3 6 4, 1 5 2 5 3 5 4 5, 1 6 2 6 3 6 4 6. ऐसे नंबर जिनमें एक डाइस के ऊपर ग्रेटर देन 4 हो, और इसमें ऐसे जिनमें दो डाइस के ऊपर ग्रेटर देन 4, 5 5 5 6 6 5 6 6. अब निकाल लेते हैं प्रोबेबिलिटी एट x इक्वल टू 0. 0 पे क्या प्रोबेबिलिटी होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 आउटकम, टोटल 36 होते हैं. तो 16/36 x इज इक्वल टू 1 के लिए प्रोबेबिलिटी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 आउटकम इसमें होंगे. 16/36 एंड x इज इक्वल टू 2 के लिए 4 आउटकम है, 4/36. बस बन गया डिस्ट्रीब्यूशन. ये डिस्ट्रीब्यूशन हमारी डिस्ट्रीब्यूशन सेम इसी तरह x एंड देन प्रोबेबिलिटी ऑफ x, वो बन जाएगा इसका डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है, तो ये थी हमारे एक्सरसाइज 13.4 के स्टार्टिंग कुछ क्वेश्चंस. नेक्स्ट क्लास में हम इससे आगे कंटिन्यू करेंगे. तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए मेरे YouTube चैनल को माय मैथ्स माय मैथमेटिक्स. थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे. बाय बाय.